राज्य में बढ़ते डेंगू के मामलों से संबंधित ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 15 प्राप्त हुई है। मैंने इसको आज के लिए स्वीकृत किया है। अब श्री अर्जुन चौटाला विधायक अपनी सूचना पढ़ें। नहीं, वो हो गया वो। आप बैठिए। श्री अर्जुन चौटाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन के का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रदेश में डेंगू के आए दिन नए केस आ रहे हैं। अब तक लगभग 5000 से ज़्यादा डेंगू के मामले आ चुके हैं, जो कि एक बड़ा गंभीर मामला है। इसमें स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय पर डेंगू को रोकथाम के उपाय नहीं लिए जा रहे हैं। पिछले वर्षों में नवंबर के प्रथम सप्ताह तक डेंगू के मामले में कमी आ जाया करती थी, परंतु इस वर्ष इनमें अभी तक लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अकेले पंचकुला में 1200 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। दूसरे व तीसरे नंबर पर हिसार में 435 केस आ चुके हैं। करनाल में 357 केस डेंगू के आ चुके हैं। डेंगू की बीमारी को अगर ठीक से समय पर इलाज ना मिले तो घातक भी साबित हो सकती है, जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा समय पर रोकथाम के आश्वायक कदम ना उठाए जाना है। इस कारण लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष व्यक्त है। अतः सरकार इस सदन के द्वारा अपने व्यक्तित्व देकर स्पष्ट स्थिति साबित करे, स्थिति को पूरी स्पष्ट तरह से साबित करने का काम करे। अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद अध्यक्ष साहब। I am grateful to the honourable members of the Haryana Legislative Assembly, Shri Arjun Chautala ji, MLA, for raising an important issue related to increasing incidence of dengue in the state of Haryana. I would like to inform my colleagues that the state government has left no stone unturned to prevent the spread of dengue in the state. Dengue is a self-limiting and an outbreak-prone viral disease transmitted by the infected female Aedes mosquitoes. Dengue virus has 4 strains, DENB1, 2, 3 and 4. The virus causes flu-like symptoms, and in some cases it can develop into severe forms like dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome, which can be life-threatening. Most of the dengue patients remain asymptomatic and lead a normal life. Some cases develop symptoms which varies from fever to bleeding and shock. Guidelines of the National Vector-Borne Disease Control Program are being implemented in the state for control of vector-borne diseases. मैं आपको बताना चाहूँगी कि साल 2021 में हमारे कुल डेंगी केसेस थे 11,835, 22 में 8,996, 23 में 8,021 और 11 नवंबर आज 24 तक 4,634 हुई हैं। Major steps have been taken to undertaken for dengue control. सबसे पहले डेंगी एक नोटिफाइबल डिजीज एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर डाला गया है। वीबीडी रिपोर्टिंग सब अस्पताल और लैब्स में स्टेट में मैंडेटरी बन गई हैं। डेंगी टेस्ट प्राइवेट लैब्स में 600 रुपये में किया जाता है और सिंगल डोनर प्लेटेड रेट्स प्राइवेट ब्लड बैंक्स में 11,000 रुपये पर यूनिट पे दिया जाता है। डेंगी टेस्ट इज बीइंग डन फ्री ऑफ कॉस्ट। 27 government labs are functional in the state, at least 1 per district till 11th November 24. Total 1,13,667 dengue tests have been conducted. 196 wards and 1,022 beds have been kept reserved for dengue cases in government hospitals. Platelets are provided free of cost to dengue patients of Haryana domicile admitted in government hospitals. This year, 75 SDP units have been provided to
to dengue patients free of cost. Source reduction activities are being done by more than 3,000 MPHW workers. Total 3.8 crore houses visits till 11th November multiple times, and larvae found in 2,09,915 houses. 1,03,485 notices have been issued till 15th October under the Haryana municipal bylaws to owners of premises where mosquito breeding is detected. More than 6,900 localities recovered under fogging repeatedly till 15th October. Fogging done by Department of ULB and Panchayat with 5,606 hand-operated and 43 vehicle-mounted machines. जैसे ही मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट संभाला, मैं भी बताना चाहूँगी कि 8 नवंबर को मैंने एक चिट्ठी लिखी और पंचायती राज, हमारे ऑनरेबल पंचायती राज मिनिस्टर जी को और ऑनरेबल यूएलबी मिनिस्टर को, ताकि फॉगिंग इंटेंसिफाई की जाए डेंगू के रहते. Intersectoral meetings at state level was also held 13 मई में under the chairmanship of the ACS Health to see coordination of other departments. At district level, intersectorial meetings in all 22 districts has been conducted. Public awareness activities are being done regularly. Newspaper advertisements, pamphlets, banners and hoardings, group meetings, miking, etc. Health staff is visiting schools to make students aware about the VBD control measures. For involvement of Panchayat, total 65,000 appeals of ACS Health Haryana circulated to all sarpanches through health workers. श्री अर्जुन अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में आंकड़ों का बड़ा जिक्र करा है और बड़े स्पष्ट तरीके से कई आंकड़े तो इन्होंने बताने का काम करा है, लेकिन कई आंकड़े मैं इनके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कुछ इनमें आंकड़े गलत भी हैं. जैसे कि माननीय मंत्री महोदय जी ने जिक्र करा टोटल नंबर ऑफ केसेस का और उनके रिलेटेड जो डेथ्स हुई, तो मैं एक छोटा सा आपका ध्यान लेके आना चाहूँगा. सीरियल नंबर 20 जहाँ सिरसा का जिक्र होता है अप टू 11th नवंबर, एक सिंगल डेथ रिपोर्टेड नहीं है, जबकि मेरे खुद के कर्मचारी की बिटिया 11 साल की उनकी बिटिया है और डेंगू में हेमरेजिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई और ये कहीं पर भी सरकारी आंकड़ों में रिपोर्टेड ही नहीं. साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने एक बात अपनी रखी इसके अंदर, मैं उसी के ऊपर एक सप्लीमेंट्री ये भी लगाना चाहूँगा कि VBDs की जो रिपोर्टिंग है सारे हॉस्पिटल्स की स्टेट को मैंडेटरी है. तो जो ये आंकड़े पेश किए गए हैं, क्यों केवल सरकारी अस्पतालों के आंकड़े पेश किए गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आंकड़े क्यों नहीं पेश किए गए इसके अंदर? क्योंकि आज के दिन जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो 14,000 डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, जिसके अंदर केवल 4,500 डॉक्टर्स आज के दिन स्टेट के लिए काम करते हैं, सरकारी नौकरियों पे हैं. 10,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं. तो उनके आंकड़े जो हैं वो क्यों नहीं रिपोर्ट किए गए? जब सवाल किया गया था तो ये कहा गया था धुंधला जवाब नहीं, स्पष्ट जवाब के लिए एक हो गया था. एक सर इसी के अंदर 2 सप्लीमेंट्री और भी हैं मेरे, कि जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने ULB एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज को 8 नवंबर को लेटर लिखा गया था कि फॉगिंग को इंटेंसिफाई किया जाए. मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से ये सवाल रखना चाहूँगा, भाई केसेस तो नवंबर के फर्स्ट वीक से लगातार उनके अंदर हमें बढ़ोतरी दिख रही है. प्रदेश को ये भी पता है कि भाई अक्टूबर के एंड में डेंगू के केसेस बढ़ने लग जाते हैं. तो क्यों 8 नवंबर तक वेट किया गया कि भाई इस फॉगिंग को इंटेंसिफाई करा जाए? इस फॉगिंग को पहले